Yes, madam. Good afternoon. Yes, ये भी मेरे साथ फोन पर Welcome everyone. On behalf of the PhD Family Welfare Foundation, I welcome all of you to today's program Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji ka Naitya Katha Krishna. I'd like to request our chairperson Mrs. Anuradha Goyal to welcome her. We'll give her the welcome address. हेलो अनुराधा जी अनम्यूट कीजिएगा। परमजीत को करना होगा। हेलो मैम। नहीं, आप भी कर लीजिए, हो जाएगा आपसे। आपकी आवाज आ रही है अब? पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जी, PhD प्रेसिडेंट डॉक्टर DK अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर संजय अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल सौरभ सान्याल जी, प्रेसिडेंट स्पेस नीतू जिब्राजिका जी, governing body members of Family Welfare Foundation and Space, distinguished guests, friends. On behalf of Space, our co-host for today's program, and the PhD Family Welfare Foundation, a warm welcome to all of you. Today is a very special day for us, as we have a dear friend of the Family Welfare Foundation, Dr. Sonal Mansingh, presenting an outstanding performance in music, verse and dance. The Natya Katha Krishna. Sonal ji, you know the foundation well and the work we are doing. Briefly, the PhD has skill development units spread across North India as far as Assam. In these units, apart from imparting different income generating skills, we inculcate in our beneficiaries our Honorable Prime Minister's directives of Swachh Bharat, practice cleanliness, fit India, remain healthy, and Atmanirbhar Bharat, be self-sufficient. Sonal ji, I'm proud to share with you that thousands of our beneficiaries are now an integral earning member of their families. A proud initiative of the PhD Chamber of Commerce and Industry, providing earnings to thousands of families. Our mobile medical clinics provide much needed medical care to people who don't have access to doctors. Once again, a much needed, deeply appreciated effort on the part of the PhD. Neetu ji will formally introduce Sonal ji. Friends, I would like to share with you an outstanding achievement of Sonal ji. She is a very dear friend, so I can take the liberty of saying this. She has trained countless students with great dedication and passion to ensure the continuity of her immense talent. Our salutations to you, Sonal ji, for your tireless crusade in the revival and promotion of arts. You have performed at the PhD Astitva Samman and for the beneficiaries of our skill development units in our celebration of Swachh Bharat Abhiyan and 150 years of the Mahatma, where you did Kasturba. Today we look forward with great anticipation to your mesmerizing Krishna as part of our Janmashtami celebrations. From Space and Family Welfare Foundation, a very warm welcome to everyone. And now may I request our President, Dr. DK Agarwal, to give the presidential address. Dr. DK Agarwal. Thank you, Anuradha ji. On behalf of PhD Chamber of Commerce, on behalf of PhD Welfare Foundation, and also on behalf of Space, I welcome
Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh ji. As Anuradha ji rightly said, she is a friend of PhD. Whenever we are celebrating and whenever we ask her to come, she has been always coming to our programs and mesmerizing us by the wonderful performance. And today also, we are lucky to have her with us. Thank you, Sonal Mansingh ji, for taking out time out of your busy schedule and being with us today. Thank you very much. I also extend a very warm welcome to my colleague, Mr. Sanjay Agarwal, Ms. Anuradha Goyal, Chairperson, PhD Family Welfare Foundation, Madhulika ji, Co-Chairperson of PhD Family Welfare Foundation, Neetu Jivraska ji, President, Society for the Promotion of Arts and Cultural Exchange, that is SPACE, Ms. Rashri Sarda ji, Secretary of SPACE, Mr. Saurabh Sanyal, Secretary General, PhD Chamber of Commerce, former presidents, governing members of PhD Family Welfare Foundation, managing committee members of PhD, also governing members of SPACE, and other participants. Again, a very warm welcome to each one of you to today's program, that is Krishna, Natyakatha Krishna by Dr. Sonal Mansingh ji. At the outset, I would like to congratulate PhD Family Welfare Foundation for completing its 35 years of very successful working. As Anuradha ji told us that she has been doing, the PhD Family Welfare Foundation has been doing great job in terms of women empowerment, in terms of Swachh India, skilling India, the kind of skill being imparted to various women. I think that's a huge job being done by PhD Family Welfare Foundation. You are making them self-reliant and you are creating a self-reliant society. So also contributing to Atmanirbhar Bharat. The very fact that you have so many health checkup mobile vans and also making sure that these vans, they go to the marginalized people and extent that medical consultations are required. I think all these activities are contributing to the society, and the kind of job which this PhD Family Welfare Foundation is doing, PhD Chamber is really proud of these activities. And during COVID times, the kind of activities which you have done, when a lot of people, they do not come out of their home, at this time, the health warriors and various members of the PhD Family Welfare Foundation, they have done a great job in distributing food packets, in distributing sanitizers, distributing health drinks and fruits in association with Coca-Cola. I think a great job is being done by PhD Family Welfare Foundation, and I compliment Anuradha ji for all these activities. I also compliment you for getting today Dr. Sonal Mansingh as a part of Janmashtami celebrations, and getting her in these COVID times is going to be really very relaxing, and I think that this was needed. So I will not take much time because we are all waiting for this mesmerizing performance by Dr. Sonal Mansingh, who is one of the I'll say most renowned classical dancer, and her narrative skill, as we will see in this Natyakatha, will mesmerize us. So without talking much, I conclude here. I again welcome each one of you to today's program. With this, I close here. Thank you very much. Can I request our President, Dr. D.K. Agarwal, to please felicitate Dr. Sonal Mansingh with the PhD emblem. Sonal Mansingh ji, humbly I present it to you. Thank you. Now I have the honor and privilege of presenting Sonal ji with a shawl. Sonal ji, this is for you. You can move across to Janpat very shortly. With a lot of love and affection, this shawl for you. Can I request our President, our Senior Vice President,
Mr. Sanjay Agarwal. Sanjay ji. जी नमस्कार my honor to address and welcome Padma Vibhushan Dr. to our chambers of PhD Chambers program. Dr. D.K. Agarwal, President PhD Chamber, President PhD Chamber, Srimati Anuradha Goyal, Chairperson of PhD Family Welfare Foundation, Srimati Madhurika Mehta, Co-Chair of the Family Welfare Foundation, Srimati Neetu Jivratka ji, President of the Society for Promotion of Art and Cultural Exchange Space, Srimati Rajshri Sarda ji and Srimati Ashna Agarwal ji, Press Secretary and Treasurer Space, Sri Saurabh Sanyal, Secretary General, PhD Chamber, former presidents, members of the governing board of the Family Welfare Foundation, members of the managing committee, distinguished guests, participants. It's really a privilege for me to introduce, to be here in this program where Dr. Sonal Mansingh has, as she has done so often in the past, she has come to the chamber and participated, and she has given up presentations on some of the most important occasions that the chamber has had. It's really my privilege to welcome the distinguished guest, Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh ji. She's only the second dancer in the history of India to have received the Padma Vibhushan, and she has the honor of being nominated to the Rajya Sabha. Again, a very rare honor for an artist. I think what she brings to the chamber is not just art and culture, but also her blessings and a feeling of divinity, which with her presence and with her art, I think make a mix which take us to a different level. That is what we have always experienced with Sonal Mansingh ji. Natya Katha, as we know, is an ancient art in every part of the world. But in India, it acquires an extra dimension when Sonal Mansingh ji interlinks the narrative, stories, myths, and legends with the philosophy, social issues, history, and other popular dimensions. She could convey perennial messages to communicate a sense of harmonious beauty. It gives me great pleasure to be here on this program to promote myself towards the devotional thought and take blessings of Lord Krishna through this beautiful and thoughtful presentation. Krishna is the most revered deity for all of us, and I am very sure that Sonal Mansingh ji is going to take us to a different plane of thinking today and a different plane of meditation also. I think what we really achieve when we watch her performance is meditation. So I again express my heartiest admiration and appreciation to Padma Vibhushan, Dr. Sonal Mansingh ji, for agreeing to do this program for us. Let us devote ourselves to the Natya, to the benefits of the Natya Katha Krishna. I wish the program all the success. Thank you. Thank you, Sanjay ji. Can I now ask Neetu Jivratika ji, President Space, to formally introduce Sonal ji? Neetu, please. Yeah. Thank you, Anuradha ji. Good evening, everyone. A very, very warm welcome to all of you. I would like to thank Anuradha ji, Chairperson PhD FWF, and the leadership of PhD for this joint program with our organization Space. Though our performer today is very, very well known, needs no introduction, I'm honored and humbled to introduce a renowned artist who has dedicated her life to Indian arts, Dr. Sonal Mansingh, an exponent of Bharatnatyam and Odissi and other classical dance forms, trained in Abhinay and Hindustani and Carnatic classical vocal, proficient in Sanskrit and German language. Sonal ji is a dancer, teacher, researcher, choreographer, and a social activist. She is the founder, president of Sri Kamakhya Kalapeeth, where she teaches holistic art, a combination of music, dance, yoga, Sanskrit, and our Indian cultural traditions.
Sonal ji was nominated in 2018 as a member of Rajya Sabha, a great honor. She's a recipient of Padma Bhushan in 1982, a Padma Vibhushan in 2003. She has been nominated by Shri Narendra Modi as Navratan of Swachh Bharat Abhiyan. Kudos to her. On the occasion of Janmashtami, we are privileged to have her perform Natya Katha, Krishna, in her unparalleled, inimitable style. We look forward to it and are eagerly looking forward to it. Thank you. Thank you, Neetu. Thank you. Sonal ji, now for the moment we are all waiting for. Sonal ji, please come forward with your mesmerizing, lovable Krishna. Sonal ji. Oh, what? She did. She has to unmute. Yes. Paramjit has to unmute her. She has to unmute herself. Sonal ji, can you hear us? Sonal ji, can you hear us? Sunita को कहना जरा परमजीत को कहिए कि unmute. I think Paramjit will have to unmute her perhaps. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमम् नरसिंहं नागनाथं शतं वन्दे नरकान्तकम् राघवं रामचन्द्रश्च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमम् पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। जय श्री कृष्ण। I'm very happy. My head is cutting. My head is cutting when you raise that. It was here. In the afternoon, it was here. This screen. अत्यंत खुशी है मुझे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अनुलक्षित
मेरी पहली वर्चुअल नाट्य कथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। आभारी हूँ पीएचडी चेंबर और अनुराधा जी का विशेष करके। यहाँ साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, मयूर पिच्छ, पीताम्बर। तो उन्हीं की बात हम शुरू करते हैं। बिजली बेग से खबर फैल गई पूरे ब्रज भूमि में, चलो चलो सब चलो। आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सब श्रृंगार करके चल पड़े। कहाँ? अरे देखो रे भाई, देखो रे, आओ रे भाई, आज बीरज में जन्म बधाई का मेला। देखो रे भाई, आज बीरज में जन्म बधाई का मेला। गोकुल में जिस जन्म लिया है, गोकुल में जिस जन्म लिया है। हाँ, किसने जन्म लिया है? क्यों जाना गोकुल? पूछ रहे हैं लोग। गोकुल में जिसने जन्म लिया है वो है दुनिया का रखवाला, दुनिया का रखवाला, दुनिया का रखवाला। कैसे हो रहा है उत्सव? भेड़ी तूरी और मृदंग बाजे, धरगड़ा धरगड़ा धता धता धता। भेड़ी तूरी और मृदंग बाजे, शंख घंट करताल, शंख घंट करताल। जन जन में सब मंगल गाए, जन जन में सब मंगल गाए। जय हो, जय हो, जय हो। नंद के लाल, यशोदा के लाल, नंद गोपाल। ऐसी विभूति का जन्म हुआ है, युगों युगों से जिसका इंतजार था, प्रतीक्षा थी। उन्होंने ही कहा कुरुक्षेत्र के मैदान में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन आए हैं तो मनुष्य देह में, आए हैं तो देवकी की कोख से, और माता यशोदा जिन्होंने उनको पाला। देख के थकते नहीं है लोग। कैसी है आकृति? घनश्याम सुंदर, नीलोत्पल, ब्लू लोटस जैसे, और तारों जैसे टिमटिमाती आंखें, और वही तिरछी नजर, और लाल लाल होंठ, मोती जैसे छोटे छोटे दांत कभी कभी निकलते हैं, काले घुंघराले रेशमी बाल, और सबको ऐसे देखता है जैसे युगों युगों की जन्म जन्म की पहचान है। माता यशोदा, गोप गोपी उसको देखते थकते नहीं है। और अब जो है कि उनके जो बाल सहज जो नटखटपना है वो बहुत अलग है। क्या? तो घुटने पे भी जब जा रहे थे, फिर दीवार पकड़ के खड़े हो रहे थे, उस वक्त मावा मिश्री घर पे दे रही, माँ मक्खन मिश्री, नवनीत मिश्री करके भागे, घुटनों के बीच से, पैरों के बीच से निकल जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? वो गोपियां अगल बगल में रहती हैं, पानी लाने गई हैं। दरवाजा तो कोई बंद करता नहीं था, आज की तरह डबल लॉक, ताले, चाबी, चेन कुछ नहीं होता था। तो वहां पे घुस जाना, और वहां पे मटकियां पड़ी है जमीन पे, अभी काम करके गई है, लुढ़काना, लुढ़का के बैठ के चपाना, मक्खन खाना, दूध दही की नदियां बहती। थोड़े बड़े हुए तो बंदरों को बुलाना,
अपने साथियों को बुलाना, गोप सखा सारे बालक कंधों पे चढ़ के मटकियां उतारना, यहाँ छोटी छोटी गुलेल से निशाना साध के मारना। गोपियां फरियाद करती थकती नहीं है। यशोदा मैया कहती है ना ना ना, तुम सब मेरे कहना के पीछे क्यों पड़ी हो। जब तक एक दिन मैया यशोदा ने अपने ही घर में पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है, बैठा है दूध दही मट्ठे की नदियां, बीच में मक्खन के टापू आइलैंड्स ऑफ बटर, सारा है, सारा सना हुआ है। और जैसे मैया ने कान पकड़ा और हाथ उठाया, एक खींच के दूंगी, आज तो छोड़ूंगी नहीं। तो गोल गोल आंखें, गोल गोल मुंह, गुड़गुड़ाने गुड़गुड़ाने बाल, और कहने लगे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अच्छा तो ये सब क्या है। तो क्या कहते हैं कि सुबह से तो मुझे भेजती है मधुबन, शाम को थक के आता हूँ, गैया चराता हूँ, गैया को नहलाता हूँ, गैया के लिए पत्ते इकट्ठे करके खिलाता हूँ, थक जाता हूँ, मेरे पास ऐसा समय कहाँ है। अच्छा, और वो बड़ा चतुर बन रहा है। फिर कहते हैं देखो मैं तो इतना छोटा हूँ, तुमने जो मटकियां हैं ऐसी के ऊपर लटका रखी है, देखो मेरा हाथ ना पहुंचता है ना ना, लेकिन ये खिड़कियों से जो झांक रहे हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ग्वाल बाल, वो मुझे पकड़ के बांध के मेरे मुंह पे मक्खन लपेटते हैं, जिससे तू मुझे पकड़े, तू मुझे मारे ना। यशोदा मैया कहती है बड़ा चतुर बन रहा है। हाँ हाँ, और बता और बता। आई एम नॉट कन्विंस्ड, मार पड़ेगी आज। तो अब क्या कहते हैं, तू जननी मन की अति भोरी, सबके कहे पति आयो। यू आर वेरी इनोसेंट माँ, लोग गॉसिप करते मेरे बारे में, तू उसको सुन लेती है। जिया तेरे कछु भेद उपजो है, जानी परायो जायो। मुझे लगता है कि तेरे मन में मेरे लिए कुछ भेदभाव आया है, जैसे कि मैं तेरा नहीं हूं, तो कहीं से मुझे खरीद के लाई है, पकड़ के लाई है। यशोदा के मुंह पे थोड़ा फर्क आया, क्या कह रहा है ये। और अब उन्होंने साधा कहा, ये ले तेरी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। गाय चराने वाली जो लकड़ी लकुटी और ये कंबल होता है, ये फेंका, छोटी लकड़ी छोटा कंबल फेंका, नहीं जाऊंगा चराने, अब कुछ नहीं करूंगा। सूरदास कहते हैं, सूर श्याम तब बेहसी यशोदा। कौन सी माँ, कौन सी माँ बच्चे की ऐसी बात सुन के प्यार नहीं करेगी। ले उर कंठ लगाए, नहीं बेटा ऐसा ना हो, ना ना, तू मेरा ही है, मेरा अपना है, मेरे हृदय का टुकड़ा है तू। और जब कृष्ण ने देखा कि मैया पूरे पूरी मान गई है, तो क्या कहते हैं, मैया मैंने ही माखन खायो, और भाग गए है। तो यशोदा जी को, यशोदा के हाथ में जाया, जिनकी गोद में तो पल रहा है, जिनकी आंखों के सामने बड़ा हो रहा है, उनको ऋषि मुनि नहीं पहचान सके, तो हमारी क्या गति है। फिर कहते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश इंद्र जाहि निरंतर गावे। इनकी स्तुति करते सकते नहीं है सारे देवी देवता। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारे तौ पुनि पार न। नारद शुक वेद व्यास तपस्या कर करके थक गए, लेकिन उनकी लीला नहीं समझ पाए, पार न पाए। लेकिन ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ से
नाच नचावे। ये छाछ दे दूंगी, लो पियो ना, पहले नृत्य करो, नटवर हो, नाचो हमारे लिए। और छोटे से कृष्ण ठुमक 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 नाचते हैं, और तब ये गोपांगनाएं, अहिर कन्याएं उनको छछिया भरी छाछ अपने हाथ से पिलाती। कहाँ से कहाँ जो ये एक दृश्य बनता है हमारी कल्पना में। हम तो क्षुद्र जीव हैं इस जगत के, हमें तो हमारे रोजमर्रे की जिंदगी से फुर्सत कहाँ है। ये हुआ, ये नहीं हुआ, वो करना बाकी है, अरे 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 अरे, कहाँ फुर्सत है देखने की, अंदर की आंखें खोलने की, कि ये जो यात्रा है यहाँ से वहां तक, लौकिक से अलौकिक, यही तो है कृष्ण। ऐसे उनके उद्यम चल रहे हैं। दूसरी तरफ से माँ माखन के भेजे हुए असुर आ रहे हैं, एक के बाद एक, अघासुर, तृणासुर, वृत्रासुर, बकासुर, पूतना मौसी, आए शकटासुर, मारने के लिए आए और खुद मरे। लेकिन जो कृष्ण के हाथ से गया वो सीधा मोक्ष प्राप्त हुआ। ये भी प्रभु की माया है, लीला है। अब है गोवर्धन, इंद्र को बड़ा रोष आया, मेरी पूजा करते थे और ये छोकरे से कहने से, ये गोवर्धन ये टिब्बा है छोटा सा, इसकी पूजा कर रहे हैं, मेरा इतना अपमान, मैं देवों का अधिपति। एटीट्यूड देखिए, आज की एटीट्यूड का बड़ा प्रॉब्लम है। जरा जरा में हम लोगों को चटक जाती है, इंसल्ट हो जाता है। अरे हमारे तो क्या, आज के छोटे बच्चे भी बड़ी एटीट्यूड रखते हैं। यहाँ इंद्र की एटीट्यूड, और उसने 7 दिन 7 रात मूसलधार बारिश की, त्राहिमाम श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पे उठाया और सारे लोग, सारे ब्रजवासी इसके आश्रय में आ गए। 7 दिन 7 रातों के बाद इंद्र की अकल बुद्धि खुली और आके साष्टांग दंडवत करके शरणागत हो गया। अब एक कवि कहते हैं, अब कृष्ण को भी एटीट्यूड आ गई। देखो, मैंने छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया, मैं गोवर्धन गिरधारी। तो हमारे साथ, हमारे सनातन परंपराओं में, भारतीय परंपरा में इतनी सुंदर बात है कि हम अपने देवी देवताओं के साथ एकाकार हो जाते हैं। और विशेष करके जो कृष्ण है, उसको जैसे कि हम आमने सामने इनसे बात करते हैं। तो कवि कहते हैं, उठा लिया, बड़े बन रहे हो, कुछ माखन को बल बढ़ो। इतना सारा माखन जो तुमने खाया, तुमको खिलाया गया, उससे तुम्हारा बल बढ़ा। कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। ये जो गोप सखा थे, उन्होंने भी लकड़ियां टिका दी, लेकिन फाइनल क्या है? राधे जू की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। राधा जी की कृपा थी जिससे आपने गोवर्धन गिरी उठाया। ये भी कितनी सटीक बात है कि हमारे यहाँ इसी तरीके से, जैसे परसों अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पीछे कुछ लिखा है, लेकिन प्रारंभ क्या किया भाषण? जय सिया राम। श्री भी लक्ष्मी है। श्री राम, जो श्री हम कहते हैं, वो लक्ष्मी है, जो समुद्र मंथन से निकली, रत्नाकर पुत्री है, विष्णु की नारायणी है। लेकिन लोग समझते हैं कि जय श्री राम यानी अकेले राम। अकेला कभी शक्ति के बिना किसी भगवान की गति नहीं। उन्होंने शुरू किया जय सिया राम और अंत भी किया जय सिया राम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, राधे जो की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे पाठ सीखने के हैं हम लोगों को।
आगे चलती हूँ तो कालिय नाग का प्रसंग सब जानते हैं। ये कालिय नाग जो है वो कौन है? कालिय नाग सिंबल है प्रदूषण। आज हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रदूषण की इतनी बात कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। अब तो ग्लोबल है, कोई देश इससे अछूता नहीं, चाहे रिवर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसकी वजह से विचारों का पोल्यूशन, दिल में भावों का पोल्यूशन। तो आज की जो यमुना है वो कृष्ण की यमुना है, लेकिन आज की यमुना ऐसी है जैसे कालिय नाग के विष से बन गई। श्रीमद् भागवत क्या कहता है? जहरीली विषैली यमुना कालिंदी बन गई और काली पड़ गई और उसमें से दुर्गंध आने लगी। और वही जो किनारा था जहां कमल दल खिलते थे, जहां कदम्ब के वृक्षों की छाया थी, जहां पशु प्राणी पक्षी पानी पीने आते थे, यात्री जो होते थे विश्राम करते थे, गोपियां पानी भरने आती थी, गोप तथा तैरते थे, ये सारा जो था सब बंद हो गया। नंद बाबा ने कहा कोई नहीं जाएगा, और श्री कृष्ण ने समझा, कृष्ण ने समझा कि यही घड़ी आ गई है, तो गेंद निकाली, आओ आओ सुकांत श्रीनाथ, कहाँ गए सब, आओ आओ चलो गेंद। और गेंद फेंकते 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 धार 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 लाओ, धार 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 धार, ऐसे फेंकी कि यमुना की मझधार में गेंद गिरी और धीरे 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 यमुना की लहरों पे तैरती तैरती अदृश्य हो गई। अरे अरे मैंने गलती कर दी, मैं जाके लाता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे कृष्ण, गलती हमारी है, चलो घर। नंद बाबा का एक उनकी आज्ञा, ना ना, चढ़े जल्दी कदम पे और कूदे, पानी में कूदे और तैरते तैरते अंदर जाके दरवाजा खटखटाया। कालिय नाग की पत्नी ने खोला और मुग्ध हो गई। बहुत सुंदर पद है हमारे नरसिंह मेहता का, जिन्होंने वैष्णवजनों के देने के लिए लिखा है। पद लंबा है और आज समय कम है, मेरे साथ मेरे संगीतकार भी नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहती है कि जल्दी छोड़ के जा, यहाँ से चला जा, तुझे तेरे शत्रु ने भेजा है कि तेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है, तू क्यों यहाँ आया, रास्ता भूल गया क्या? तो कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मथुरा नगरी में मैं जुगार खेल रहा, बाजी हार गया और बाजी पे मैंने तुम्हारे पति कालिय नाग का सर रखा था, मैं बाजी हार गया तो सर लेने आया हूँ, जो जीत गया उसको देना पड़ेगा। नाग पत्नी फिर कहती है, रंगे रूडो रूप पूरो, रंगे रूडो रूप पूरो, दिसंतो कोडिनो कोडामणो, तारी माताए केतना जन्मिया ये मातु अड़खामणो। इतना तो सुंदर बच्चा है, बालक है, किशोर है, यंग मैन, तेरी माँ के कितने बच्चे हैं कि इसको पता ही नहीं तू कहाँ भटक रहा है? कृष्ण कहते ऐसा कुछ नहीं है, मारी माता है बेउ जन्मिया से महु नटवर ना लड़ो, मैं छोटा हूँ, हम दो ही है, जगाड़ तारा नाग ने मारो, नाम कृष्ण कहाँ लड़ो। बातचीत में टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अपने हस्बैंड को जगाओ, बोलो कृष्ण कहान आया है। अब ये गुस्से हो जाती है, उद्दंड बालक जाती है पति के पास, कालिय नाग सोया हुआ है, जगाती है, चरण चापी मुछ मरडी नागणे नाग जगाड़ियो, उठो ने बलवंत कोई बारणे बालक आइयो। जल्दी उठो, एक उद्दंड बालक दरवाजे पे खड़ा है, जाओ निपटो। फू करके कालिय नाग उठा और लपका और वहां पे
क्या दृश्य है। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पट पटकत। नाग के 1000 फणाओं के ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उसको उन्होंने नाच लिया है। और उनके चरण के चिन्ह आज भी आपको कोबरा के ऊपर दिखते हैं, नाग फणा पे दिखते हैं। और कैसी आवाज आती है, पम 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 पग पटकत, पम 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 फनन ऊपर। ये देख के बिम 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 विनती करत नागवत मुखारी। सारी नागपत्नी आसपास इकट्ठी हो गई, विनती कर रही है, छोड़ दीजिए। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। उस समय दृश्य क्या है, सम 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 सनकादि, सनकादि ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए हैं। सम 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 सनकादि, गम 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 गंधर्वादि, गंधर्व अप्सरा यक्ष किन्नर सारे नृत्य गान कर रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और नम 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 नारद आदि सब ही देश सारी, सब ही देश सारी, सब ही देश सारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, नाचत बनवारी। ऐसा कृष्ण जय जयकार हो गया, शरणागत हो गया कालिय। और श्री कृष्ण ने क्या कहा, जो शरणागत है उसको हम मारेंगे नहीं, दूर चले जाओ। किसी भी मनुष्य की वस्ती, किसी पशु प्राणी को तुम हैरान नहीं करोगे, दूर चले जाओ। अपने पूरे परिवार के साथ कालियनाग समुद्र में चला गया। शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ। देखिए, भूल सबकी होती है जीवन में, भूल को मानना और उसके लिए क्षमा मांगना, उसका पश्चाताप करना, यही सबसे बड़ी बात। लेकिन वहां पर भी एटीट्यूड, मेरे से तो कोई भूल नहीं हुई, नो आई एम फाइन विथ यू, तो आपका कभी भला नहीं होगा। ये भी यहाँ पे एक पाठ हमें सीखना है। अब मैं आती हूँ यहाँ कि यहाँ पे एक अद्भुत बात क्या होती है कि गोपियां सारी घेर लिए हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण का मन किसी और में रम रहा है। हाँ, तो पहले एक जयकारा करते हैं, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भी जयकारा घर में बैठ के बोलिएगा। तो सुन रखा है कि जो राधा है, बरसाने की राधा अति सुंदर, बरसाने की राधा अति अति सुंदर। और उनका वर्णन कर देती हूँ, क्योंकि श्री राधा कृष्ण के बारे में तो श्रीमद् भागवत में नहीं वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत का जो इशारा है उसके बाद राधा जी ही छा गई है। रुक्मिणी जी कहीं रह गई, राधा जी छा गई। तो ऐसी राधा का ध्यान श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। सप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, प्रणमामि हरि प्रिये, प्रणमामि हरि प्रिये। राधा का वर्णन तो अद्भुत है, इनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। ये श्री राधा और मयूर पिच्छ वाला एक छोटा अंगवस्त्र है, जिसके जो मैं राधा जी को अर्पण करती हूँ। और राधा का एक छोटा वर्णन मैंने लिखा। कमर पतली नगर बिजली सुराहीदार गर्दन है, सुराहीदार गर्दन है,
संग मरमर सात राशा वाश पाप बदन। संग मरमर सात राशा वाश पाप बदन। सकत सुंदर सिसा निर्मल कोमल चंचल मन। रंगत ऐसी की जैसे सुबह के नूर की शपथ। आवाज जैसे सात वरों की मीठी आवाज। उसके बाद क्या क्या लंबा वर्णन है, मैं आखिर बताना चाहूंगी कि राधा जी की जो जो चाल है क्या है। गजगामिनी गजगामिनी गजगामिनी, मस्त हाथी जैसी चाल। गजगामिनी मनमोहनी मोरनी 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 इठलाती बल खाती चाल। घन घोर घटा शर्माए ऐसे रेशमी सुंदर बाल। रेशमी सुंदर बाल। राधा जी के रूप का जितना वर्णन करो कम है, शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन थोड़े को बहुत कहा। जानिए श्री राधा जी की कृपा रहेगी। बोल श्री राधे कृष्ण की जय। अब ये है कि जब से बरसाने में राधा जी से मिले हैं, उसके बाद से ये हालत हो गई है कि बिना राधा नाम लिए यदि कृष्ण का नाम लिया है तो कृष्ण आपके पास कभी नहीं आएंगे। ये बात शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों ने भी कहा है, याद रखिएगा। उसके बाद ये होता है कि श्री कृष्ण को अक्रूर ले जाते हैं मथुरा बलराम जी के साथ। वहां चाणूर मुष्टि मल्लों के साथ युद्ध करके मामा कंस का शिरच्छेद करके मथुरा स्थापित करके फिर कंस सारे राजा आक्रमण करते हैं, तो वहां से चले जाते हैं सौराष्ट्र और वहां समुद्र से श्री वरुण देवता, पानी के देवता जो है, द्वारका नगरी उनको भेज सकते। द्वारका नगरी का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। सोने जैसी चमकती, सोना चांदी पारस ये संगमरमर, आप जो कह लो, नवरत्नों से जड़े हुए प्रासाद, ध्वजा पताका, ऐश्वर्य समृद्धि जिसका अंत नहीं। और वहां श्री कृष्ण ने यादवों का साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे ऐश्वर्य समृद्धि, लेकिन पास के गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण आज अपनी पत्नी की बात सुन रहा है, माधुकरी भिक्षा करके लाता है, कभी एक रोटी, कभी दो रोटी, कभी आधी, कभी कुछ नहीं। एक बालक, एक बालिका, पुत्र पुत्री है। आज पत्नी से रहा नहीं गया और खड़ी होके कह रही है, रटते रहते हो आप सदा, है कृष्ण हमारे मीत बड़े, करुणामय अंतर्यामी कह, गाते रहते हो गीत बड़े। आज पूछती हूँ, क्या रखा है इन बातों में, इनसे अपनी क्या पीड़ मिटी। पे सदा भूखे रहते, नंगी भूख पर हर रात कटी। तो क्या करूं? सुदामा पूछते हैं। पत्नी सुशीला कहती है
इसीलिए कह रही हूँ, जाओ स्वामी द्वारका, जाओ स्वामी द्वारका, करती हूँ अनुरोध। एक बार जरा देख लो, एक बार जरा मिल लो, करो न मुझ पर क्रोध। सुदामा कहता, ठीक है चला जाऊंगा द्वारका, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? इतनी मर्यादा है हमारे परंपरा में कि गरीब से गरीब, क्षुद्र से क्षुद्र भी यदि किसी के घर जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। पति ने उपाय बताया, जैसे हर एक पत्नी को, माता पति को मालूम है, उपाय हमेशा उनको मालूम होता है। चली गई पड़ोसियों के घर और एक एक मुट्ठी तांदुल मांग के ले आई, फटी हुई साड़ी का आंचल फाड़ा और पोटली बना के दे दी, ले जाइए। बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम था कि कृष्ण को तांदुल बहुत अति प्रिय है? आपने ही तो बताया था। दूसरे दिन प्रातः भोर ब्राह्म मुहूर्त में उठ के सुदामा जी निवृत्त होके पोटली लटकाई कंधे पे, हाथ में पकड़ी खड़ताल और हरि स्मरण भजन करते करते चल दिए और पहुंच गए। मध्याह्न का सूर्य तप रहा है, मिड डे सन, और आंखें उनकी चौंधा गई। सूर्य की द्वार का सामने चकमक चकमक चकमक। तो क्या कहते हैं, आए सुदामा द्वारका, आए आए सुदामा द्वारका। ऐसा लगा सब स्वप्न है, आंखें फटी सी रह गई। क्या आ गया अलकापुरी, हर चीज थी अद्भुत नहीं। आकाश को छूटे कलश, ऊंचे भवन अट्टालिका। जहां देखो वहां महल, ऊंचे ऊंचे प्रासाद, ध्वजा पताका से सुशोभित। फिर इस और भी उस और भी फैले हुए हैं राजपथ, अभिमान से भर नागरिक दौड़ा रहे हैं स्वर्ण रथ। सुदामा जी एक तरफ खिसक जाते हैं और सुनते हैं हर एक घर के प्रसाद महल के सोने के पिंजरे में लटके हुए तोता मैना क्या करें, जय श्री कृष्ण, जय हरे कृष्ण। अरे वाह, कोई और कृष्ण होगा? मेरा कृष्ण तो कहता था कि आ जाना मेरे गांव, आ जाना, कभी पूछ लेना, तो कोई भी बता देगा। तो पूछ रहा हूँ, पूछ रहे हैं। सबने तिरछी नजर से देखा, यहाँ चले गए, वहां चले गए। किन्हीं लोगों ने तो यूं किया, क्या उसका नाम पूछ रहे हो? सुदामा कुछ समझे नहीं। एक सज्जन ने कहा, वो दूर दिख रहा है ना, वो 7 मंजिला सोने का महल, वहां चले जाओ, वहां पूछ ले। ठीक, सुदामा जी गए वहां पे और सैनिकों से पूछ रहे हैं। सैनिक मजाक उड़ा रहे क्या? एक सैनिक ने तो कहा, खबरदार, किसका नाम ले रहे हो? सुदामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, कृष्ण का तो पूछ रहा हूँ। उसने में मुखिया आया और बड़े शालीनता से कहा, विप्रवर, हे ब्राह्मण, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सुदामा जी ने बताया कि मैं वहां से आया हूँ, कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, कहा था मिल लेना द्वारका आके, अब मैं पूछ रहा हूँ। ना 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 ना, ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुदामा है, बता देना। वो रहता कहाँ है? तो मुखिया खाली हंस दिया और भागा और दौड़ा 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 बगीचों से होता हुआ एक एक हॉल, ऑडियंस हॉल, सभा हुआ, चढ़ा धड़ 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 धड़, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं मंजिल पे पहुंच गया। सांस फूल गई है। बुलाया, बाहर की जो दासी थी उसको बुलाया, बोला। वो बाहर की दासी ने अंदर की दासी को बुलाया, बोला। अंदर की दासी ने मुख्य दासी को बुलाया, बोला। और मुख्य दासी गई। रुक्मिणी मुख्य पटरानी पंखा जल रही है। छत्र पलंग पर श्री कृष्ण लेटे हैं। सत्यभामा पैर दबा रही है हल्के हल्के। लक्ष्मणा वीणा बजा रही है। जाम्बवती मंजीरा बजा रही है। और बाकी चारों, कोई गुलाब जल छिड़क रही है, कोई और पंखा झल रही है। दास दासी चुपचाप खड़े हैं। सभी की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख चंद्र पे है। देखते देखते
आंखें पलक भी नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण साक्षात रुक्मिणी के कान में कहा। तो कृष्ण ने आंखें खोली, रुक्मिणी क्या बात है मुझे बताइए। स्वामी कोई संदेशा आया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, कौन लाया है, बुलाओ। बुलाया गया, मुखिया आया, साष्टांग दंडवत करके घुटने पे बैठ के बोलने लगा, शीस पगान झगासन में अनुजाने से आन बसे के विश्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और माय उपान के नहीं। न शीश पे पगड़ी है, न अंग पे कोई जिब्बा पहन कुछ है, अंगरखा है, न पैर में कुछ पहना है, और कौन से गांव से आया है बताता नहीं है। लेकिन द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकितो वसुधा अभिरामा। द्वार पे एक पतला द्विज खड़ा है और हर चीज को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, आपका बार बार पूछ रहा है, आप कहाँ हो, कृष्ण कहाँ है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, बतावत आपनु नाम। सुदामा, सुदामा, अरे सुदामा कहाँ हो। कृष्ण लग के पलंग से उछले कूदे भागे, पैर में कुछ नहीं, गोदी बीच में आ रही है। अरे भाग रहे, 7 6 5 4 3 2 1, भागे 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 भागे। कहाँ है सुदामा। और मुख्य द्वार उसके बाहर देखा, एक जगह एक छोटी सी ऊंची हुई आकृति पर दबे पांव कृष्ण गए और पीछे से आलिंगन किया। सुदामा ने धीरे से सर उठाया और वर्षों के बाद 4 आंखें मिली, 2 कृष्ण की, 2 सुदामा की। 4 आंखों से अश्रु जा रहे हैं। बरस रही आंखें सतत, हिचकी बंधी अतूर, जकड़े हैं हरि मीत को, जाए न पल भर छू, जाए न पल भर छू। बरस रही आंखें सतत। धीरे से सुदामा को उठाया और पकड़ के धीरे धीरे ले गए महल में और अपने सोने के सिंहासन पर बिठा रहे। सुदामा बार बार उठता है, नहीं कृष्ण क्या, नहीं नहीं। कृष्ण ने जबरदस्ती बिठाया और तब तक सोने के थाल में आया है चरण पखारने का। ये काम स्वयं कृष्ण ने किया। उस गंदे मैले धूल वाले सुदामा के पैरों को कृष्ण ने स्वयं धोया और एक एक पैर अपने उत्तरीय से पोंछा और उसके बाद चंदन केसर मिश्रित लेप किया और फिर उन्होंने उस चरणामृत का पान किया। वो धूल वाले पैर जो धोए थे उसका स्वयं त्रैलोक्येश्वर स्वयं नारायण वासुदेव और साष्टांग दंडवत किए। सुदामा देख रहा है, कृष्ण क्या कर रहे हो, कृष्ण उठो, कृष्ण उठो। सारी रानियां स्तब्ध हैं, दास दासी स्तब्ध हैं। और फिर जब उन्होंने चरणामृत दिया रुक्मिणी को तो रुक्मिणी समझ गई और वो चरणामृत धूल मिश्रित नहीं था, वो चरणामृत अमृत के समान निर्मल मीठा। सभी ने वो चरणामृत लिया और अब सुदामा को स्वयं कृष्ण ले गए हैं। तैलाभ भंग किया,
सुगंधित ऐसा अच्छे से मसाज किया, गरम गरम पानी से नहलाया, झीने झीने मलमल का वस्त्र पहनाया, धोती उठाई और फिर सोने की पीढ़ी पे, सोने के थाल में, सोने के पाट में बैठ के 56 भोग सामने रुक्मिणी ले आई। सुदामा की तो आंखें फट गई। कभी आधी रोटी खाने वाला जिसके पेट और पीठ दोनों मिल गए हैं, ऐसा दुबला पतला कृष्णकाय सुदामा। कृष्ण ने हंसते हंसते अपने हाथों से सुदामा को खिलाया। ये लीला क्या है? ये लीला क्या है कि ब्रह्म ने ब्रह्म के पेट में आहुति दी। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, तो सुदामा के पेट में ये अन्न नहीं गया, ये अन्न गया है उस नारायण वासुदेव ब्रह्म रूपी कृष्ण के पेट में आहुति पड़ी। सुदामा तो सारा चट कर गया और उसके बाद आंखें यूं हो रही है, सुदामा तुम विश्राम करो, थक गए हो। अपने छत्र पलंग पे सुदामा को सुलाया और खुद नारायण कृष्ण पंखा झल रहे हैं। सूर्यास्त के पहले उठाया, उठो जलपान करते हैं। उसके बाद सांदीपनी गुरु मुनि के आश्रम में हम दोनों थे। उन वर्षों की बात, उन दिनों की बात मेरे साथ कौन यहाँ करेगा? सुदामा उठो, अपन, मुझे बड़ी चटपटी हो रही है, चलो चलो। अब जलपान के बाद सुदामा और कृष्ण एक दूसरे के सामने बैठे हैं और सारी रानियां बैठी हैं, दास दासी सब खड़े हैं और बिल्कुल दो मित्र जैसे थे। तो कृष्ण कहने लगे, सुदामा याद है? सुदामा कहता, बिल्कुल याद है। गुरु पत्नी हमसे बहुत स्नेह करती थी। गुरु का तो था ही। हाँ, कहते कृष्ण, हम दोनों को ही तो भेजती थी वन में, सूखी लकड़ियां काट के लाओ यज्ञ में समिधा के लिए। और फिर सुदामा याद है तो हमें चने देती थी, 2 हिस्से, एक तेरा एक मेरा, कि भूख लगे, आने में देर हो जाए, चने खा लेना और पानी पी लेना। हाँ, सुदामा कहता है, मुझे याद है। कृष्ण कहते हैं, 2 दिन याद है? एक दिन हम वन गए सुदामा, शुष्क लकड़ियां लाने को, गुरु माता ने चने दिए थे हम दोनों के खाने को। मुझे न देकर तुमने खाए, मुझे न देकर तुमने खाए, याद सभी ना है तुमको। सुदामा झेप रहा है, बगल में पोटली दबी हुई है तांदुल की। अब यह आदत को छोड़ के दे दो, भाभी के तंदुल हमको। खींची पोटली और फट 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 आंखें खोल दी और जल्दी मुट्ठी भर के 1 और फिर 2 और फिर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी कृष्ण के मुंह में नहीं जाने दी। रुक्मिणी जो है वो ज्ञान रूपा है। रुक्मिणी को पता था कि 2 मुट्ठी तांदूल कृष्ण के मुंह में गए हैं, उन्होंने सुदामा को क्या क्या दे दिया है। अब तीसरी मुट्ठी भी यदि उनके मुंह में जाएगी तो हम 8 रानियों को भी दे देंगे। कृष्ण हंसे, अच्छा हमें प्रसाद दीजिए स्वामी, इतने स्वार्थी मत बनिए, तो बांटो चलो। सुदामा देख रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं। उसके बाद आनंद प्रमोद में कुछ दिन बीते हैं और समुद्र विहार, नौका विहार पूर्णिमा की रात को हो रहा है, नृत्य हो रहा है, संगीत हो रहा है, वीणा बज रही है। स्वयं नटवर नृत्य कर रहे हैं सुदामा के लिए। और सुदामा कहता है, मुझे स्वप्न में मेरी पत्नी, मेरे बालक बालिका आए थे, आज मैं जाऊंगा वापस। अच्छा, इतनी जल्दी? ठीक है, लेकिन जल्दी 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 भाभी को, मेरे भांजे भांजी को लेकर आ जाना। फिर बुलाते हैं, रुक्मिणी सत्यभामा सब आइए, सुदामा जी को विदाई देनी है। सुदामा जी चले, पीछे सारा नगर उमड़ा। मुख्य द्वार पे नमस्कार करते हैं, कृष्ण साष्टांग दंडवत करते हैं, रानियां घुटने पे पड़ के नमस्कार करिए, नगर जन नमस्कार कर रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। शतपुत्रवती भव, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, लक्ष्मीमान भव, देते देते निकले हैं। फिर जल्दी आना, कृष्ण से आऊंगा। द्वार का दिखती बंद हो गई तो बुद्धि पे पर्दा पड़ गया सुदामा के। सोचने लगा, गया था तब तो तांदूल की पोटली भी थी, वापस जा रहा हूँ खाली हाथ। क्या कहूंगा सुशीला को, क्यों मैं आया,
ये पाखंडी कृष्ण बचपन से झूठा, चोर बचपन से रहा जो ग्वाल हो, जो कुटिल बहुरूप पिया हो चाल हो, जो बहुत अभिनय कुशल भ्रमजाल हो, प्यार उसका सिर्फ एक उछाल हो, कैसा तो मुझे पकड़ लिया जकड़ लिया, फपक फपक कर रोया, टसुए बहाए आंसू बहाए। कोई अर्थ नहीं इसका, नो मीनिंग। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। दुखी होते 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 बड़बड़ाते फड़फड़ाते सुदामा जी गांव पहुंचे और झोपड़ी कहीं मिली नहीं। कहाँ गई मेरी झोपड़ी? वहां तो 7 मंजिला सोने का महल, वही पहरेदार सैनिक दास दासी घूम रहे। अरे मैं फिर चला गया द्वारका, ये क्या हो गया? मुझे भ्रम कैसे हो रहा? और सुदामा जी जैसे मुड़े तो हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मणी उनकी पत्नी सुशीला बिल्कुल हर रोज दिन रात देख रही है रास्ता, उसने देख लिया दूर से आ रहे हैं। 7वीं मंजिल से उतरी नीचे, बालक बालिका को आगे किया, दासियों से आरती मंगवाई और देखा, हाथ पकड़ लिया। अरे 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 छोड़ू, क्यों छोड़ू? परस्त्री का स्पर्श। परस्त्री? अरे मैं परस्त्री कब से हो गई? सुशीला पूछती है। जरा देखो। तो सुदामा जी ने मुड़ के देखा, वही आंखें, वही कान, वही नाक, वही सुशीला और वही मेरे दोनों। लेकिन ये क्या? राज रानी जैसा श्रृंगार, दास दासी, ये क्या है तुम? तो मैं बड़े वर्षों से जो कहती हूँ, स्त्री जन्म से ही ज्ञानी है, पुरुष को साधना करनी पड़ती है। जो बात पुरुष नहीं समझ पाता वो स्त्री समझा देती है। यही वही हुआ। रत्नावली ने तुलसीदास बनाया, तुकाराम की पत्नी को साक्षात विठोबा रुक्माई के दर्शन हुए। मां तुकाराम विठोबा विठोबा करते पंढरपुर में। यहाँ सुदामा की पत्नी सुशीला ने क्या कहा? महिमाय यदुनाथ की, सुनो प्राण प्रिय नाथ, अमर मित्रता रूप है, स्वयं वारता नाथ, स्वयं वारता नाथ, स्वयं वारता नाथ, स्वयं वारता नाथ। मित्रता की भाषा समझा दी, मित्रता का अपरूप बता दिया सुशीला ने। कौन है यदुनाथ? सुदामा। जो भक्त है सुदामा, भक्त सुदामा की बात सब करते हैं, लेकिन सुदामा को जब ज्ञान मिला तो किससे मिला? पत्नी सुशीला से मिला। इसीलिए मैं चाहूंगी आप सब जुड़े मेरे साथ, एक जय जयकार करें। बोल श्री द्वारकाधीश की जय, बोल श्री सुशीला सुदामा की जय, बोल श्री राधे कृष्ण की जय। तो 5 मिनट है, तो मैं जैसे हमेशा करती हूँ कि मीरा के भजन से, जो मीरा स्वयं द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, द्वारका गई, इनके अंतिम वर्षों में मंदिर में ही रहती थी, और एक दिन मात्र फूलों का हार मिला, मीरा कहीं नहीं थी, वो उनका विलय हो गया था द्वारकाधीश की स्वयं की मूर्ति में। लेकिन आनंद का है ये।
मन चाकर राखो जी, मने चाकर राखो जी। चाकर रहतु बाग लगातु, निसौच दर्शन पातु। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गातु। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल पैजों की माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु। मुझे मेरा कंठ रूंध रहा है, मुझे सामने दिख रहा है कृष्ण। वाह! वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। भगवती, वाह 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 प्रभु जी, तेरी साक्षात हो गए। मीरा मीरा मीरा, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, हृदय रघो जी धीरा। मीरा दासी यहाँ नहीं है, यहाँ मीरा वो है जो सवा गई। आधी रात प्रभु दर्शन दीन है, जमुना जी के तीरा। अमर हो गई तू मीरा, अमर हो गई। तो आप सबको वही यशोदा का प्रेम, राधा का माधुर्य, रुक्मिणी का पत्नी भाव और सुशीला का भक्ति भाव और मीना का अनन्य प्रेम आज मुबारक है। आप सब गोपी भाव से भक्ति कीजिए। कृष्ण के लिए सखी भाव, गोपी भाव ही मान्य है और तुरंत हाजिर होते हैं, तुरंत प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा गोविंद, श्री राधा नाथ, श्री राधा कांत, श्री राधा माधव, श्री राधा मुकुंद, राधे श्याम। हम सब की रक्षा करें, हम सब पे आशीर्वाद बरसाएं, हमारा जीवन माधुर्य से भर जाए, हमारे जीवन में कल्याण हो, सभी का शुभ मंगल हो, योग क्षेम हो। कृष्ण ने वचन दिया है गीता में, योग क्षेमम वहाम्यहम। मैं योग और क्षेम मेरे भक्तों का मैं खुद इसका वहन करता हूँ। तो डर काहेगा हमें, डर काहेगा। बस रचे बचे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, भक्ति में लीन हो जाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए और आनंद दीजिए। यही आज का राधे कृष्ण का संदेश है। इसी के साथ फिर एक बार मेरे साथ आप जयकार करेंगे। बोल श्री राधे कृष्ण की जय, बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल श्री द्वारकाधीश की जय। सोनल जी, बहुत अति सुंदर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत Wonderful performance. एब्सोल्युटली वंडरफुल मैम, वंडरफुल, Brilliant. सोनल जी, सुरेश जी का भी बहुत बहुत प्रणाम आपको। Mesmerizing is the word. हाँ, Absolutely एब्सोल्युटली। mesmerizing. also tears come from my eyes also. Saurav ji, can I request you to please formally propose on behalf of the Family Welfare Foundation and the Chamber, please thank
Sonal ji profusely for this absolutely stunning performance. Certainly, certainly. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of PhD Chamber and on my own, it is a great pleasure to be a part of this excellent program. Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji, our President Dr. D.K. Agarwal ji, our Senior Vice President Shri Sanjay Agarwal ji, our Vice President Shri Pradeep Multani ji, Ms. Anuradha Goyal ji, our Chairperson for the PhD Welfare Foundation, Mrs. Neetu Jivrajika ji, President Space, all the former presidents of the PhD Chamber, members of the Managing Committee, the governing body members of the PhD Welfare Foundation, Women and Child Committee, and distinguished participants, guests, and all panelists present here. On behalf, I wish to thank profusely the Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है आज और इतने भाव से वो It's not a performance, I'm sorry. It's not a performance, it's an offering. Madam, it is a Natya offering. Katha which you have Yes, given. it's an offering. It's an offering, ma'am. ये हमारी तरफ से प्रभु के चरणों में दे रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है. Thank you, Sonal ji. Thank you, Sonal ji, for correcting me. It was a Natya Katha, I would say, and it was really mesmerizing, and really we all got very sentimental seeing you, and we went back to the stories of Lord Krishna and her days in his days with the gopis, as you rightly brought out. I would like to thank everyone present here in the webinar for seeing and witnessing the offerings by Sonal Mansingh ji on Krishna. I would also like to thank Srimati Anuradha Goyal ji, the chairperson, who has taken this beautiful initiative and organized this program on this auspicious occasion of Janmashtami, which is coming on the 12th and 13th. Some places it is 12th, some places it is 13th of August, it will be celebrated. I would like to extend my hearty vote of thanks to Padma Vibhushan Dr. Sonal Mansingh ji for her meaningful and heart-touching performance. This evening brought some of the most known and beautiful episodes from Lord Krishna's life in the unique style of Natya Katha with music, narrations, explanations and interpretations. It was indeed a mesmerizing and delightful performance. With these words, I would like to once again thank each one of you for sparing a valuable time. Happy Janmashtami to everyone, and I would like to request all of you to carry this vote of thanks with applaud. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen, and Jai Hind. Thank you, Anuradha ji. Thank you very much. Thank you. So there's one more. अर्चना अग्रवाल स्पेस की तरफ से बोलेंगे. अर्चना, आप बोलिएगा पहले स्पेस की तरफ से. Good evening, ladies and gentlemen. Lost to find words adequate to thank Padma Vibhushan Sonal Mansingh ji for wonderful, inspirational, and mesmerizing offering to Natya Katha. Sonal ji, you have today transported us into the world of Lord Krishna, away from our daily worries and tensions, into this celebration of Janmashtami. At the same time, I would like to thank Dr. D.K. Agarwal ji, Shri Pradeep Multani ji, Srimati Anuradha Goyal ji, and our own Space Club President, Srimati Neetu Jivrajika, for organizing today's amazing program. My grateful thanks to all the distinguished guests who attended today's program. Thank you. Sonal ji, it was absolutely outstanding. हमारा सारा परिवार, बहू रानी मिशिका, सुरेश जी, बेटा गौतम सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको. सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. हम लोग एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं. हम सब मंत्रमुग्ध हो गए. भाव विभोर हो गए थे. बिल्कुल, that is the right word. Actually ये लगा कि साक्षात दर्शन हो गए.
बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लगा और सुन के Very बिल्कुल emotional. Very, very beautiful. मेस्मराइज हो गया। धन्यवाद जी सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सोनल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने राधा और कृष्ण के साक्षात दर्शन करवा दिए हम सबको। धन्यवाद बहुत बहुत। इवन कृष्ण सुदामा का भी जो आपने सुनाया इतना अच्छा लगा सुन के, हमें अपने पुराने मित्रों की याद आ गई उससे सुन के। जी जी धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार।